Okay. Doctors, taking a review for the last topic in the plant physiology, that was we started with the mean and mode of transportation, that was active and passive only. In active, it was against the concentration gradient. Agree? Yes, sir. Yes, sir. In passive mode of transportation, it is towards concentration gradient. Agree? Yes, sir. Yes, sir. But in passive mode of transportation, there were two diffusions. One was simple diffusion, one was the facilitate diffusion, and another one was the diffusion of water. This is known as osmosis. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Only facilitate diffusion and active transportation do require carrier protein. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Because simple diffusion and osmosis doesn't require any carrier protein, because it is, though it's towards concentration gradient, even facilitated diffusion is towards concentration gradient, but still it is facilitated by any mediator, or I should say the carrier protein. But in case of simple diffusion and the diffusion of water, which is called as osmosis, simple diffusion osmosis, these two do not require any type of carrier protein. Agreed? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Perfect. After that, we switch to the porines. Porines are the proteins. Proteins in a pore is known as porines. If it is an aquatic system, it is known as aquaporines. These porines are big holes but pass only small molecules. Agreed? yes, sir. Yes, Perfect. Perfect. Then we studied the co-transportations or the co-transports. There were three patterns. Which one? Uniport, antiport, symport, and antiport. Perfect. Uniport, symport, and antiport. Uniport, irrespective of any movement of any molecule, single molecule alone move in or out of the cell, then it is uniport. If we talk about the symport, two molecules move together in the same direction, either in or out, but in antiport, one is opposite to another. This is antiport. Agreed? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Perfect. Perfect. After that, we studied what are the principles behind this such type of transportation. So we came to know that there is some potentials. There were three potential we studied: solute potential, pressure potential, and water potential. Water potential is the potential of available free water. That's it. If it is not at all bind or bound with any of the molecule and it's free to bind, then it is considered as the free and available water, and this is known as its chemical potential, or known as water potential. But if we add a solute, that is not measurable ki how much amount of solute you added. What measures that by the addition of solute, whatever the amount of water potential decreases is actually the solute potential. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, Krishna Tile, Krishna, am I audible, Krishna? Yes, sir. Gitanjali, Devanshi, Karan, Yes, sir. Harshada, Ajan, Ali, Alisa, Yes, sir. Yes, sir. जय पाटिल. चलिए, तो सार्थक भाई मैंने कहा कि इसीलिए solute potential is always negative. I hope you all are agreed. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And pressure potential is usually positive, and the total of that solute potential and pressure potential equals to water potential. Agreed? Yes, yes, sir. Yes, sir. And Shravani madam, Sakshi madam, जहां तक मुझे पता है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है ये प्योर वाटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन. अग्रीड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अयान भाई, वेदांत भाई, संकेत, डॉक्टर वेदिका शेलके, वेदिका कदम, सिद्धि, वेदांत भालेराव, वेदांत दिवारे, तनुजा, सुहानी, Yes, sir. श्रावणी, everyone is agreed with one more point. यदि मैं आपसे ये कह दूं कि वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम and it is equals to 0 of any pure water. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Very nice. Yes, sir.
Yes. And based on this, we studied plasmolysis. Well, three types of, I should say, solutions: hypertonic, hypotonic, and isotonic. In hypertonic, the concentration outside the cell is more. Or I should not say like in this way, कि बाहर ज़्यादा होगा. If the concentration is more, anywhere it is hypertonic. If concentration is less, it is hypotonic. If it is equal on both the sides, then it is what? Isotonic solution. So what we expect in hypertonic, if the solution is hypertonic, then what we expect? What will happen with the cell? The cell will shrink. The cell will shrink because water will move from the cell to outside the cell. And if the cell is placed in a hypotonic medium, then what is expected? Cell will swell. यही तो कारण होता है दोस्तों. This is only the reason why freshwater fish cannot survive in marine water, or a marine water fish cannot survive in freshwater. भाई मरीन वाटर में जो रह रही है उसको आदत हो गई है खारे पानी में रहने की, कॉन्सेंट्रेटेड पानी में रहने की, और हम उसे रख रहे हैं फ्रेश वाटर. तो जैसे ही आप उसे फ्रेश वाटर में रखते हैं, फ्रेश वाटर में रखते से ही बाहर वाटर पोटेंशियल होता है ज्यादा, वो फूल के मर सकती है, स्वेल हो जाएगी क्योंकि वाटर तेजी से अंदर आने लगे, क्योंकि वो मरीन फिश है. और यही फ्रेश वाटर फिश को आप यदि समुद्र में डाल दो, खारे पानी में डाल दो. दिनेश, आता हूं आपके सवाल पर आता हूं. खारे पानी में डाल दो तो वो श्रिंक होकर मर जाएगी क्योंकि बाहर पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट है उसमें, और बाहर जैसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो अंदर का पानी बाहर चला जाएगा. अग्रीड विद दिस कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is a very good question came from the candidate Dr. Dinesh Shinde कि सर यदि वाटर पोटेंशियल जीरो है तो उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? एनीवन? दिनेश भाई बिल्कुल सही सवाल पूछा. एक भी विद्वान को नहीं बन रहा है, क्योंकि कंसेप्ट है उसमें. बहुत अच्छा सवाल पूछा. बोलो. जीरो कौन बोला? रौनक थोराट. डॉक्टर थोराट, बहुत बढ़िया. दिनेश भाई, यदि मैंने आपसे कहा कि साइन डब्ल्यू इक्वल्स टू साइन एस प्लस साइन पी, एंड इफ साइन डब्ल्यू जीरो, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? माइनस और प्लस. लेकिन वो होगा क्यों? क्योंकि आप सॉल्यूट पोटेंशियल की कोई वैल्यू दे ही नहीं सकते, बिकॉज आपने उसमें कोई सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया. डॉक्टर दिनेश, Yes, sir. agreed? Yes. So if water potential is zero, then definitely the solute potential must be zero at that moment when the water potential is maximum and it is equals to zero. Agreed? Yes, sir. Perfect. चलिए, उसके बाद मैंने ये सब पोटेंशियल्स आपको बताए बच्चों, और उन पोटेंशियल्स को बताने के बाद फिर मैंने आपको आई थिंक यस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये भी दोनों चीजें बताई. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल. प्रेशर इज पॉजिटिव, पोटेंशियल इज नेगेटिव. अग्रीड? Yes, sir. उसके बाद एक जनरल मेथड अब मैंने प्रोसेस आपको बताया, दैट वाज इम्बाइबिशन, जो कि जिसके लिए किसी मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं, था, क्योंकि इम्बाइबिशन भी वही है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर ही है, बट वो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए उसे कह दिया गया नया नाम, दैट इज इम्बाइबिशन. वो यदि लिविंग के थ्रू हो जाता तो उसे अपन क्या कह देते? ऑस्मोसिस. अंडरस्टूड? Yes, sir. श्लोक, मयूर, वेदांत, संकेत, प्रथमेश धात्रक, समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? Yes, sir. ठीक, समझ में आना भी जरूरी है और इंटरेक्ट करना भी जरूरी है. खुशी आई रे, मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आप इंटरेक्ट नहीं करती. खुशी, पापा कई बार आपको बोले हैं, कई बार आपसे बात हुई है, जब भी आप यहाँ पर आपको ये समझाया गया कि एवरीवन मस्ट टॉक विद यू, सम कम्युनिकेशन विद यू. आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप क्या सोच रहे हो ये मुझे नहीं पता लगेगा, एंड यू विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स. वो जितने भी लोग बात नहीं कर रहे हैं, मैं आंसर्स देती रहती हूँ. आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन. श्लोक गुर्जर, सुहानी पाटिल, तनुजा पाटिल, वेदांत देवारे, आप शांत बैठे रहोगे तो नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं हो सकता. एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट जहां से आज हम स्टार्ट करने हैं बच्चों, हेडिंग डालते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ऑडिबिलिटी, विजिबिलिटी इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पेन डाउन करते हैं बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ। अभी तक जितनी भी चीजें मैं बता रहा था, डिफ्यूजन हो, ऑस्मोसिस हो, पैसिव एब्जॉर्प्शन हो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है, काफी हद तक एक्टिव तो फिर भी काम कर ले जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये जितने भी फोर्सेस लग रहे थे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, दैट इज गुड इनफ फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। कोई पॉटेड प्लांट है, पॉटेड प्लांट को यदि आपने पानी पहुंचाना है तो जो गमले में आपने पानी डाला है, जो पॉट में पानी डाला है, वो रूट के प्रेशर से ही पहुंच जाएगा। what we expect when it's a heighted plant like a bamboo tree, it's very tough, it's very tough। शॉर्ट डिस्टेंस में मैं आपको यदि कहूं कि यार अभी एक बकेट पानी ले जाओ, फिर दूसरी बकेट पानी ले जाना, फिर तीसरी बकेट पानी ले जाना, या फिर चौथी बार आप सामान और कुछ ले जाना, पांचवें टाइम कुछ और सामान ले जाना, आप कह रहे हो सर एक ही जगह मुझे जाना है, एक ही जगह जाना है, मुझे सारा ही क्यों नहीं दे देते? अरे मैंने कहा भाई यही तो है, शॉर्ट डिस्टेंस ही तो है, फिर आके ले जा लेना भाई। यूजुअली ऐसा होता है कि गांव में आज भी ये तरीका है कि एक पंगत बिठा ली जाती है, और जब पंगत बिठा ली जाती है तो एक सब्जी की ऐसी क्या कहते हैं उसे बकेट होती है, फिर उसमें दाल की बकेट होती है, फिर चावल की बकेट होती है। यूजुअली क्या होता है, आप सब एक साथ लेके नहीं जा सकते, अरे यहीं तो डालना है, किचन यहाँ पर लगा है, पंगत यहाँ पर लगी हुई है, आप आना जाना कई बार कर लेते हैं। हैव यू एवर सीन दिस सिनेरियो? Yes, sir. Yes. मुझे बताइए कि यदि ऐसा कहीं हुआ कि जैसे शहरों में आजकल होता है कि खाने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं 150 लोगों के, कैटरर कहीं और होता है, कैटरर सर्विस वाला कहीं और होता है, खाना कहीं और बना रहा है, वो खाना त्र्यंबकेश्वर से बन के आ रहा है और खाने की जो पंगत या जो रिसेप्शन एरिया है वो कहीं पर गंगापुर रोड पे। अब एक खाना बनकर आ रहा है त्र्यंबकेश्वर से, यहाँ पर लगा हुआ है गंगापुर रोड पर, एक लॉन लिया गया है, वहां पर खाना सर्व किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? एक एक बार रोज एक एक चक्कर लगाते रहे या सब एक साथ एक गाड़ी में ले आए? सब एक Why plant should waste the energy unnecessarily? भाई शॉर्ट डिस्टेंस होता तो ठीक है, एक बार पानी अकेला ले गया, दूसरी बार मिनरल ले गया, तीसरी बार फ्लोएम का फूड ले गया, भाई ठीक है शॉर्ट डिस्टेंस। But as far as long distance, it's very tough to manage because it will be more expensive if every time only one material is carried. So what they use a system known as bulk flow. Known as what? बल्क फ्लो। और बल्क फ्लो की सबसे अच्छी बात, हमें बल्क फ्लो जो पढ़ना है कि लॉन्ग डिस्टेंस का कंसेप्ट आया मतलब हमारे दिमाग में आ गया भाई बल्क फ्लो। व्हाट इज बल्क फ्लो? बल्क मतलब क्या? मासिव, बहुत सारा आइटम एक साथ लेकर जाना, और क्यों ना जाए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है भाई। ऐसा थोड़ी कि एक बार ले गया शॉर्ट डिस्टेंस है, फिर दूसरी बार ले गया, फिर तीसरी बार ले गया। सो बल्क फ्लो का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है वो भी यही बताऊं आपको। बल्क फ्लो में irrespect of any molecules density, बात को समझना, बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। irrespect of any molecule density, irrespect of any concentration gradient, irrespect of molecular size, irrespect of molecular weight, irrespect of anything, the material move with the same pace like a flowing river। बहती नदी में कोई तेज बहती नदी बह रही है,